Okay. Should we make this a journalistic conversation, ideological conversation, or political conversation? But I think Mr. Narendra Modi has set the ground rules, really spoken on the topic itself, which is regional identity and national pride in a sense, and suggested that they aren't necessarily in conflict. Before we open it up, Modi ji, I just want to ask you one small thing. Had you come to the first Hindustan Times Summit in 2002, had you come? अगर आप आते उसमें 2003 में, तो मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं, और इसके बाद मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि वुड यू हैव मेड अ सिमिलर स्पीच? तब आप क्या गोधरा, आतंकवाद, मियां मुशर्रफ के बारे में बात करते? आज आपने बात की है गांधी, विकास यात्रा, गुजरात के डेवलपमेंट में, पानी के बारे में बात की है। क्या नरेंद्र मोदी बदल गए हैं? क्या गुजरात में स्थिति बदल गई है? क्या दुनिया बदल गई है? कपड़ों से तो लगता है राज्य बदल गया है। नहीं, कहीं क्या बदलाव आया है? जो मुद्दे आप 5 साल पहले उठाते थे, आज आप वो मुद्दे नहीं उठाते। क्या आपको लगता है कि एक बार आप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, 5 साल चले हैं, तो एनी चीफ मिनिस्टर थिंक्स ऑफ डेवलपमेंट नाउ and doesn't think of the emotional divisive issues? Is that a change that you have seen in yourself, or is that a political reality you have come to terms with? हो सकता है कि जिन लोगों ने इस प्रकार की आलोचनाएं की हैं, उनमें अभी वो हिम्मत नहीं आई होगी मेरे सत्य स्वरूप को स्वीकारने की। हो सकता है they will have to wait for 5 years, और मैं इंतजार करूंगा। There are a lot of English-speaking people in the audience who perhaps don't understand what you've said, so I'm going to try and translate from time to time, but I want to persist for just this moment that there is a media perception, particularly English language media, which you often attack and target, who called you for years the hero of hatred, Hindutva hero. Today you're seeing, even in the Hindustan Times, I don't know if Veer will permit me to use it, but he even suggested in paper that, he almost called you a mass murderer. You did? Okay. Now, how do you respond to those people today? How do you respond to those who for years called you hero of hatred, mass murderer? जिन लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है, मैं उन सब मित्रों को प्रणाम करता हूं, मैं बड़ा आदर करता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों के प्रति मेरी दोस्ती बरकरार करने की मुझे ताकत दे, बहुत अच्छी दोस्ती बनी रहे, और मैं मानता हूं कि समय आने पर सत्य हर को समझने की कोशिश करेगा। Let me just once more try before I open it. Mr. Modi, do you fear, while you talk about this agenda, you're going around the world, you achieved enormous popularity, I see in the newspapers in China itself, from the kind of speeches you made focusing on the development of the state. Your past will haunt you. Are you worried about that? Would you like, before this gathering, once and for all to clarify so that it doesn't arise both for Veer and others? Do you regret what happened in 2002? Do you believe that the time has come to move on beyond it? मेरी गुजरात की जनता को मैंने न्याय करने का उनको सुपुर्द किया है, और उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने एक बार न्याय किया, दोबारा भी करें। आप आकर के आइए, एजेंडा सेट कीजिए कि पूरे ऑडियंस को मैं गुजरात में निमंत्रण देता हूं। राजदीप सरदेसाई की जो एजेंडा है उसको आप बल दीजिए, वहां मेहनत कीजिए मेरे गुजरात, क्योंकि मेरे वो भगवान है। मैं उनको जवाबदेह हूं और मैं उनको जवाब देता रहता हूं, और मैं दोबारा जाऊंगा मैदान में। आप आइए, सब लोग आइए, निमंत्रण है। So do you believe, Modi ji, as a politician, as a chief minister, ultimately your vision of Gujarat will be defined by the people of the state? If you keep winning elections, then you believe you are doing the right thing. Is it about morality, or is it about winning elections? If you win an election, everything is fine. ये आपको तय करना है कि आप जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं या अपने पुराने विचारों को पकड़ के रखते हैं। वो आप पर निर्भर करता है। मेरे लिए जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी के लिए, मेरे लिए जनता फाइनल है। जनता फाइनल, but that is every individual of Gujarat. Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look,
my agenda is about development. My agenda is about water scarcity. My agenda is not about communal politics. I am sorry about 2002. जिस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स ने जो विषय तय किया है और जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, उससे बाहर जाकर के कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है, वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे। जो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करें तो ये शोभना भरतिया जी तय करे आगे क्या करना है, कैसे एंकरों को बुलाना, क्या करना, वो आप तय करें। कैसे वक्ताओं को बुलाना आप तय कर लीजिए। और CNN, IBN आपका पार्टनर है, तो आप दोनों मिलकर के तय कर लीजिए। मेरा भाग्य मेरे गुजरात की जनता तय करेगी। और दूसरी बात है जी, मैं जब कहता हूं कि मैं 18,000 गांव में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाया। अब आपको उसमें 90%, 10% खोजने का वो कौन सी विकृतियां आपके भीतर घुस गई है कि जो पूर्ण नहीं देख सकती हैं, वो कौन सी नेगेटिव चीजों ने आपके अंदर घर कर गया है जो देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अगर मैं साबरमती के अंदर नर्मदा का पानी पहुंचाता हूं और साबरमती में नर्मदा का पानी पहुंचाने के कारण मेरे अहमदाबाद शहर के फ्लोराइड कंटेंट कम होता है और एक अच्छा पानी मेरे अहमदाबाद के नागरिकों को मिलता है, तो ये क्या जरूरत है कि कितने परसेंटेज को क्या मिलता है और कितने परसेंटेज को क्या पूरे शहर को मिलता है। ये अगर मैं भाषा बोलता हूं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है, ये निर्णय आपको करना होगा। आपने अपने आप में वो दम होना चाहिए उन विकृतियों से बाहर आने का। और मैं मानता हूं आप देश को इन विकृतियों के अंदर कितने साल तक जकड़ के रख पाओगे, नहीं जकड़ के रख पा सकते हो। So, Narendra ji, Modi ji, are you saying India has moved now beyond the politics of negativism? I think you've raised an important point. You're suggesting that there is no space for negativism, whether in the media or outside. You believe now that the time has come to look beyond negativism. मैं देश को सलाह देने की क्षमता नहीं रखता हूं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं। मैं जहां हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट कर सकता हूं कि मैं ये कर रहा हूं। मैं देश को सलाह नहीं दे सकता हूं। Okay, let's open that to the audience. I think Mr. Modi has raised several valid points. I think it's important to recognize that on several criteria today, Gujarat is, particularly on various development indices, way ahead of other states. So, what is it about the Narendra Modi mantra for politics that is working perhaps in Gujarat? Certainly opinion polls, he mentioned CNN, IBN, our poll showed that if elections were held today, he'd be doing very well. What is it about people that he's able to reach out to, even though he may have his critics? So let's try and understand the Narendra Modi persona. Yes, Ashwini. देखिए, in democracy, criticism is welcome. But there is no, I am against the allegations. Criticism is welcome. और criticism नहीं है तो democracy चल ही नहीं सकती भैया। और कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण हूं, कोई दावा नहीं कर सकता। Criticism is always welcome. और democracy में criticism must be there. लेकिन allegations I don't understand. Have you learned, sir, from that criticism? Do you believe you've changed? मैं राजदीप को खुद देखिए, और अगर कोई बात ध्यान में आती है तो पंजाब केसरी 10 हफ्ते तक सच्चाई को करता रहे। अब आइए मैं आपका अखबार बांटूंगा। Yes, Sohail. आपने ये कहा कि डेवलपमेंट के बारे में जो सही कहा, द टॉपिक, और मैं तो मेरी इतनी खासियत भी नहीं है कि मैं एंकर बन पाऊं कभी भी। टॉपिक इस समिट का है इमेजिन द इंडिया दैट कैन बी। और आपके पूरे स्पीच में आपने कभी भी रिलीजन का नाम नहीं लिया या हिंदुत्व का नाम नहीं लिया। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि आगे जाके ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई भी पार्टी हो, उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा क्योंकि और कुछ नहीं रेलेवेंट है? क्योंकि जो अभी भी ताकतें हैं जो कह रही हैं कि भाई रिलीजन, धर्म, हिंदुत्व, वो सब क्या आप समझते हैं कि आगे जाके इस भारत में इररिलेवेंट होगा और इररिलेवेंट हो गया है? अगर गांधी राम राज्य की बात करते थे, और मुझे आज भी लगता है कि गांधी आज भी रिलेवेंट है, और मुझे वो दोनों बातें रिलेवेंट लगती हैं।
You want to define what you think is Ram Rajya. Why don't you define it for us, sir? What is Ram Rajya? How is Narendra, sir, is Narendra Modi... महात्मा गांधी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, जिसको एक शब्द में कहना है तो वेलफेयर स्टेट की बात की है। और मैं मानता हूं राम राज्य का शब्द का प्रयोग, वो शब्द उनके मन में से उठना, वो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है। और मुझे लगता है कि जब से हम वहां से हट रहे हैं तभी से बुराई आई है। राजीव शुक्ला। राजीव न बॉलिंग करता है, न बैटिंग करता है, न एम्पायरिंग करता है, फिर भी क्रिकेट में है। मैंने पूरे भाषण में आज देखा कि मोदी जी का जो ट्रस्ट था वो महात्मा गांधी पे था, सरदार पटेल पे था। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि गांधी की सबसे बड़ी खासियत ही थी कि सबको जोड़ के वो आगे चले और बढ़े, इसीलिए शायद उनका आंदोलन सफल हुआ। तो मोदी जी, आपको नहीं लगता है कि अगर गांधी जी सबको जोड़ के चले, पूरे समाज को, तभी आगे बढ़े, तो गांधी जी से सबक लेके आपको भी पूरा समाज अपने साथ जोड़ना चाहिए, समाज का कोई पक्ष आपसे अलग न हो। और उसके साथ साथ मेरा अपना ये मानना है कि जो विकास है उस बिना पूरे समाज को साथ लिए चल सकता। आज गांधी जी होते तो आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ गए होते? मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि राजीव शुक्ला कांग्रेस में है, उसको गांधी का ज्ञान नहीं है। आपको जो गांधी का वर्णन कर रहे हो, जिस सवाल का आपने आधार बनाया, सुभाष बाबू की घटना को याद कर लीजिए, सुभाष बाबू के प्रकरण को याद कर लीजिए। कौन सा प्रकरण? सुभाष बाबू और गांधी के संबंधों का प्रकरण याद कर लीजिए। नहीं, आप पूरी बात तो कही। आप जो कह रहे हैं सबको जोड़ने वाला, सुभाष बाबू और गांधी का प्रकरण देख लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि सुभाष बाबू अलग थे गांधी से। आप अब उस घटनाक्रम को देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस के बयान अपने पढ़िए, उन्होंने खुद कहा कि गांधी सबसे ज्यादा। उस घटनाक्रम को देख लीजिए। मैं अपनी कोई कमेंट नहीं करता हूं, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी के जीवन का कांग्रेस की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ये एक चैप्टर है, उसको आप देख लीजिए ना। नहीं, चैप्टर मैंने ही पढ़ा है। You want to specify what you're trying to say. I think forget the Gandhi Bose incident. नहीं, जो उन्होंने प्रियम्बल रखा था अपने सवाल का, उस प्रियम्बल को मैंने रिस्पॉन्ड किया है। नहीं सर, I think the question समझ में जवाब नहीं आ रहा। What does Gandhi mean for Narendra Modi or for India today? What do you think for Gujarat, India? मैं आज भी मानता हूं गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, आज भी उतना ही मैं रिलेवेंट देख रहा हूं। डेवलपमेंट का, ग्राम स्वराज का, गांधी का, एंड दिस इज माय कन्विक्शन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में आचार्य विनोबा जी भावे के माध्यम से बहुत कुछ काम चल रहा था। तो एक डॉक्टर द्वारकादास जोशी, अब तो आयु 90 साल हो गई, वो बहुत ही डेडिकेटेड गांधीयन, वो जिनके मुझे बहुत आशीर्वाद मिले मेरे जीवन में। तो डॉक्टर द्वारकादास जोशी ने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो देश को बहुत नुकसान नहीं होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो पूरा गांव बिखर जाता है, एक दूसरे को मारने काटने पर जाते हैं। क्यों न हम गांव के अंदर यूनानिमस इलेक्शन का माहौल बनाए। एक सपना मैंने बचपन में सुना था। मित्रों, जब मैं मुख्यमंत्री बना 7 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था, 2001 की बात करता हूं, और उसी समय मेरे यहां 11,000 पंचायतों के चुनाव ड्यू थे। तो उस दिन मैंने एक स्कीम घोषणा की थी कि जो गांव यूनानिमस से अपना इलेक्शन तय करेगा, गांव मिल करके करेगा, उनको मैं 1 लाख रुपया डेवलपमेंट राशि दूंगा। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस, आज मेरे राज्य में 45% एरिया ऐसे हैं कि जहां पर यूनानिमस इलेक्शन हुए और उसके कारण जो बॉडी बनी है वो बहुमत को नहीं पूरे गांव को वफादार रहती हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज गांव के डेवलपमेंट में एक यूनानिमस एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। अब ये मूलतः गांधी का विचार है, मूलतः गांधी का विचार है। ओके, यस मधुत्रियन, यस। थैंक यू। आई एम सुनील गुप्ता। मैं क्वेश्चन सोनिया गांधी से पूछना चाहता था, लेकिन वी सांघवी ने कहा फेमस नहीं है तो आप नहीं पूछ सकते, खाली फेमस लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई रियली फेल्ट वेरी बैड। अब ये सवाल सबके लिए है कि मैडम ने भी कहा कि जो प्रेसिडेंट लिया है वो हमें बड़ी खुशी है, एक वुमेन प्रेसिडेंट आया है, बट वाई डू वी स्टिल नाउ
base our politics on religion, caste, and gender? Why not on ability? He's saying why do we base politics even today on caste, gender, religion, not on ability? Yeah. Why is she so happy with a woman president? Why not with the ability? भाई मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इन जनरल मतलब इन जनरल देखिए, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हूं जिसकी कोई कास्ट नहीं है। मैं ऐसा परिवार में पैदा हुआ हूं कि जहां मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं ही एक एक्सेप्शनल केस हूं बहुत बड़ा कि जिसकी न कोई जाति है न बिरादरी है, कुछ नहीं है साहब। एक गांव के अंदर बहुत ही मामूली परिवार में पैदा हुआ हूं और मेरे घर में कोई ग्रेजुएट नहीं है। ऐसे परिवार से आया हूं भाई। Sir, maybe you can take that point. You know, imagine the India that can be. Do you believe this is one of the major conflicts of India? Between those who have come from rural India, perhaps had not had the same access to education, and another India, which has ruled India for much of the last 60 years. Is that the fundamental tension you see in Indian politics? आप जैसे नेता आ रहे हैं, दूसरे भी नेता हैं जो कई सालों के से रहे हैं, जिनकी फैमिली सरनेम होगी. You see a conflict between those two leaders in the future? देखिए, मैं समझता हूं ये बड़ा एकेडमिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब जैसे अरविंद के जीवन को कोई देखें, श्री अरविंद के, तो वो सारे पैरामीटर बैठते हैं कि वो कभी इस देश को प्रेम कर ही नहीं सकते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई जीवन, लेकिन वो अरविंद थे जिन्होंने देश के लिए अपने आप को खपा दिया। अब अपने आप को खपा दिया। इसलिए हम इसको बहुत स्पेसिफिक किसी चौखट में फिट नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन ये जरूर है, और ये कहना है कि कोई शहर में पला है, अंग्रेजियत में पला है, तो उसको इस देश के प्रति प्रेम नहीं होगा और कोई लेना देना नहीं होगा, मैं समझता हूं ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं होगा। और इसलिए ऐसी विवादास्पद चीजों को पनपाना नहीं, ये अगर हम संयम बरतें तो हम कुल मिलाकर के देश को साथ ले सकते हैं। I only ask this because you often attack the English speaking media and you often seem to suggest that we are... पहली बात ये है, ये राजीव ने दोबारा कहा तो मैं कहता हूं, मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा हो, यानी इस मीडिया के संबंध में, आप कोई कोर्ट मेरा ले आइए, मैं जरूर इस बात को पब्लिकली आप जो कहें वो मैं कहूंगा। मैं उसके कंटेंट के संबंध में जरूर कहा होगा, कंटेंट के संबंध में मैंने कहा होगा। और वो अगर मेरा राइट नहीं है तो फिर तो डेमोक्रेसी की बात करने का आपका अधिकार कैसे बनेगा? Just time for two last questions, Madhu, 3 and 1 more. Yes, and we'll get some this side. Yeah. Yes. इन सारे सवालों में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चल रहा है, ऑल सॉर्ट ऑफ सर्कलिंग अराउंड 2002. आप भारत को जब का भविष्य देखते हैं, डू यू इमेजिन एन इंडिया दैट इज प्योरली हिंदू? इज देयर अ प्लेस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया इन द फ्यूचर? ये सवाल उन लोगों की समस्या है कि जो हिंदू और हिंदुत्व को जानते नहीं है। अब देखिए, हिंदुत्व की फिलॉसफी क्या है? वो कहता है एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको जानने जताने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है कि गॉड इज वन। कभी हिंदू ये नहीं कहता। बुक है, इजराइल का ऑफिशियल बुक है, उसने ये कहा है कि कोई ये न समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए, हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुर्म किया था, कम अधिक मात्रा में। लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था, अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान ऐसा है, जब पारसी हिंदुस्तान में आए तब गुजरात के किनारे पर राजाओं बसते थे। वो जब आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं, लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब जो हम अग्नि लाए हैं, उस अग्नि को जब हम रखेंगे तो उसकी 50 किलोमीटर की रेंज में नॉन ईरानी कोई आना नहीं चाहिए। यानी राजा हिंदू, व्यवस्था हिंदू, और उन्होंने मांग एंटी हिंदू की। और यह देश ऐसा है कि यहां के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूं कि वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यताओं का आदर करेगा। और मैं आपको बताता हूं विश्वास के साथ, आज जो दुनिया टेररिज्म के कारण संकट में आई है, उसका और उसमें
जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मैं नहीं कहता उसमें इमोशनल सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है, और उसका मूल कारण है होलियर देन दाउ, तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है, ये जब भाव जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमाओं चला जाता है। अगर कोई कहता है हिंदू ही है जो सर्वसमावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए आपको परमात्मा प्राप्त होगा, आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए आपको प्राप्त होगा, ये मूलतः हिंदू फिलोसॉफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती है। Okay, Louis Khurshid, one final question there. मोदी जी, आप बड़ी खूबसूरती से राजदीप सरदेसाई के चुंगल से तो निकल गया था उस वक्त। आई वांट टू टेक यू बैक टू व्हाट यू हैड सेड। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु फील दैट व्हाट हैपेंड इन 2002 इन गुजरात वाज अ नेशनल शेम। You believe that it was not a problem because the people of Gujarat voted you back to power. मैं आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 100% में से 100% में से कितने लोगों ने आपको आपके पार्टी को कितने प्रतिशत वोट हासिल आपने किया, ताकि ये समझ लो कि how many people were part of your Gujarati pride and how many people were not. No, what's your question, ma'am? My question is, what percentage of the people of Gujarat voted for your party when you returned? Out of 100%, how many percent did you win? And if you won 40 or 45%, does it mean that 55% or whatever was left does not go along with you and does not agree with your version of Gujarati pride? आज हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है वो भी उसी प्रकार से वोट लाई है। आप जो लॉजिक आप लगाते हैं उसी लॉजिक से जवाब आएगा। आप ये तय करें कि आपको चाहिए वो जवाब मिले, वैसा तो सवाल हो नहीं सकता। आपने जो सवाल उठाया, देखिए हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसा चल रहा है। 100% मतदाता एवरेज 50% वोट डालते हैं, उसमें से जो 26% ले आता है वो 100% पे राज करता है। ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और खुर्शीद जी हमारे उसी पर तो चलते रहते थे। Mr. Gupta, you want to ask one quick question? Yes. Please keep it quick and brief. Very, very quick. आपने ये तो कह दिया कि राजीव शुक्ला को न तो बैटिंग करनी आती है, न फील्डिंग करनी आती है। मैंने आती नहीं है नहीं कहा, करते नहीं है ये कहा भाई। और 2 गुजरात के सपूत, जो भारत के भी सपूत हैं, जिन्हें बैटिंग भी करनी आती है और बॉलिंग भी करनी आती है, और साउथ अफ्रीका में हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए इरफान पठान और यूसुफ पठान, 5 दिन लगे आपको उनको रिकॉग्नाइज करने में। आपको एक तो न डेट का ज्ञान है न समाचार का ज्ञान है। ये मुझे आपसे की शिकायत है कि आप इतने सोए हुए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। नहीं, आप सोए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके खबरों का जो स्रोत है उसको वेरीफाई कर लीजिए, और आप अच्छा होगा। और दूसरी बात है, कोई इनाम दे या न दे उसके आधार पर मूल्यांकन होगा देश का। ये भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये मीडिया एजेंडा सेट करेगा कि किस मिनट क्या करना है? और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हमारे गुजरात के बच्चे और देश के नौजवानों ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पराजित किया था, गौरव हो, इनाम हो, अच्छी बात है। लेकिन अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर में हमला हुआ तब पाकिस्तानियों को मेरे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था, तब जाकर के किसी ने इनाम नहीं दिया, उसको क्वेश्चन किया था आपने? उन्होंने तो पाकिस्तानियों को गिरा दिया था। ये तो क्रिकेट के मैदान में जीत के आए थे, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये भी तो झेलना पड़ेगा जो ऐसे सवाल पूछते हैं। One thing hasn't changed, huh? You've remained combative as ever. 5 years haven't changed that. But I want to ask you one final question. Do you really see yourself as a future Prime Minister of this country? Is that an ambition that you have? The discussion was about Chief Ministers, about Gujarat. You believe that your priority at the moment is Gujarat. You're fighting an election there. But do you see your long-term agenda? If you win this election in Gujarat, Mr. Modi, do you believe that your next step would be at the national center stage? Is that something that you see as a goal?
ये तो पूरा सवाल ही इरेलेवेंट है, बेमतलब है। मित्रों, मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी कॉलेज का भी चुनाव नहीं लड़ा था। और जब मैं गुजरात में गया तो मुझ पर जो एक आरोप था, जो मीडिया का भी था और मेरे ओपोनेंट्स का भी था, और वो ये था कि मोदी क्या करेगा, एक सरपंच नहीं बना, कभी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना है। और तब मैंने कहा था कि मेरा आरोप मुझ पर जो लगा है वो सही है, क्योंकि मेरा वो रुचि का क्षेत्र नहीं रहा। मैं कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा भैया। अब ये ठीक है कि अचानक मेरे जिम्मेदारी तो आ गया, तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे जो काम मिला है वो मैं, भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि शक्ति दी है, उसको पूरी झोंक करके मेरे राज्य की भलाई के लिए काम करूं। न मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, न चुनाव मेरा एजेंडा होता है। मेरा अगर एक एजेंडा एक है तो मेरे गुजरात का भला हो, मेरा गुजरात देश के विकास के लिए काम आए, हर प्रकार के विकास मेरे गुजरात में हो। और दिन रात मेरे दिमाग में, मित्रों, ये शायद शब्दों में आपके गले नहीं उतरेगा, लेकिन आप जैसे किसी परमात्मा से जुड़ गए हो, किसी की भक्ति पूजा करते होंगे, अच्छे बुरे पल में आपको कृष्ण याद आते होंगे, राम याद आ जाते हो, कोई माता याद आती हो। मित्रों, मुझे दिन रात सिवाय गुजरात कुछ नहीं दिखता। मैं पागल हो चुका हूं गुजरात के गया, और मेरा वो पागलपन ही है, मेरा गुजरात की भलाई करेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा वो पागलपन बरकरार रखने में कुछ दोस्त मेरी मदद करे। इसमें गुजरात पूजा है या व्यक्ति पूजा है? आपके जो विरोधी हैं एक पॉइंट हमेशा कहते हैं मोदी जी कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। यू वांट एवरीवन टू talk about, have you identified Modi with Gujarat? Anything that happens in Gujarat, if there's an oil discovery in Gujarat, it happens because of Narendra Modi. Is that part of the problem? That मुझे लगता है कि I'm asking you, मैं आपको स्पेसिफिक प्रश्न आपका समझ गया, जवाब देता हूं। अगर हर चीज के लिए मुझे गालियां इतनी न पड़ती तो शायद ये परिस्थिति पैदा न होती, क्योंकि गालियां इतनी दे दी आपने, इसलिए अच्छाइयां भी वहां आइडेंटिफाई होती है। दोनों चीजें उचित नहीं है, ये मेरा मत है। दोनों चीजें उचित है। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी गालियां भी मत दो, और एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी क्रेडिट भी मत दो। अब ये बैलेंस आपसे संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है। नहीं सर, चैनल का नहीं सर, आई एम आस्किंग, योर ओन पार्टी सेज दिस. This is the only criticism. The major criticism against your government at the moment is that it is about an individual. It's about building. Do you believe that you can build systems like this? Do you believe this is why there are problems in your party? अगर मैं इवनिंग कॉर्ड करता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं ज्योतिग्राम करता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 700 लोगों को लेकर गांव में जाता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर आपको पूरा समझने का समय नहीं है, आपको एक चलती का नाम गाड़ी लिखने की आदत है, अब उसको जवाब देता मैं कहां टाइम बिगाड़ूंगा भैया? आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। Mr. Narendra Modi, I think we could go on like this for a long time, but I think we've decided that we've drawn a line here. There's a Lakshman Rekha. I think you've answered most of your questions. I think Mr. Modi still remains, in a sense, some say a victim of a stereotype. Others believe that he still has much to answer for. But whichever way it is, he still remains a politician to reckon with. Mr. Narendra